હવે સવારમાં ભાઈએ સૌથી પહેલી વસ્તુ જો ચાલુ કરી હોય તો માનવના ઇતિહાસની વાત કરી. મતલબ આજે 400 કરોડ વર્ષ પહેલાથી માનવની એ ઇતિહાસની વાત કરી. એટલું લાંબુ આપણે નથી લેતા, પણ એને શોર્ટમાં કહીએ તો આ ધરતી જે મતલબ શું છે કે એકચ્યુઅલી એમાં પદાર્થ વ્યવસ્થા બની, પછી એક વસ્તુ છે કે એમાં જે વૃક્ષ વનસ્પતિ બન્યા, પછી પ્રાણીઓ આવ્યા, પછી ધીમે 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 મનુષ્ય, એવી રીતે જે ધીમે 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 કરતું આવ્યા. તો ભાઈએ એવી વાત કરી કે 2 લાખ સાલ પહેલા માણસ આવ્યો. 2 લાખ સાલ પહેલા આવી રીતે માણસ આવ્યો અને એમ કરતા 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 10, 11, 12 હજાર વર્ષ પહેલા ખેતી ચાલુ થઈ. અને એવું કરતા કરતા ધીમે 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 માણસ ખરેખર મોટા ભાગની પોતાની જે શક્તિ હતી એ આજે જૂના સમયમાં તમે જુઓ તો માણસને પોતાની જાતને બચાવવી અને પોતાની જાતને જીવિત રાખવી. બચાવવી એટલે શું છે? એ વખતે પ્રાણીઓનો ભય, બીજો ભય, ત્રીજો ભય. તો પ્રાણીઓનો ભય હોય તો એને પછી શું છે? કારણ કે એની પાસે કશું હતું નહીં, અગ્નિ નહોતું, કોઈ ઓજાર નહોતા, કશું નહોતું. તો એને પોતાની જાતને બચાવવા માટે એકચ્યુઅલી કઈ રીતની વસ્તુ કરે કે જેથી પોતાની જાતને બચાવી શકે. તો એવું કરતા 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 એને ઘર બનાવ્યા, બીજું બધું કર્યું, અને હથિયાર બનાવ્યા, અને હથિયાર બનાવતા બનાવતા પશુથી બચવાની વસ્તુ કરી. અને ધીમે ધીમે એની પોતાની જે ખાવાની વસ્તુ છે એમાંથી જે કંઈ આ બધું શીખ્યો ક્યાંથી? કારણ કે પશુમાંથી જ માણસની આગળ આવ્યો છે. તો પશુમાં હતો તો એને પશુનું જોઈને જ બધું શીખ્યો. પશુ શું છે કે કોઈને મારીને ખાય છે, પશુ આ કરે છે, તો એ જોઈને એ પણ શીખ્યો કે આવી રીતે પ્રાણીઓ મારીને ખવાય, આ ખવાય, તે ખવાય. આ બધી વાત જે શીખ્યો એ પશુ પાસેથી શીખ્યો. અને એવું કરતા 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 ખેતી આવી. અને ખેતીમાંથી શું છે કે એકચ્યુઅલી એને ખબર પડી કે હા, ખેતી કરી શકાય, ખેતીમાંથી અનાજ આવે અને અનાજમાંથી આવી રીતે સંગ્રહી શકાય. અને એવું કરતા 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 માણસ પોતાની શરીરને બનાવી રાખવાનું, એટલે પોતાના શરીરને ખરેખર સાચવી રાખવાનું, અને એના માટેનો પ્રયત્ન કરતા કરતા એક સમય સુધી આવી ગયો. અને એ સમયમાં તમને કહું કે અત્યારે એક એવી વસ્તુ આવી ગઈ કે પોતાના જીવનને અને પોતાના શરીરને બચાવવા માટે અને એને અનુકૂળતા આપવા માટે જ્યારે છેલ્લા 200-250 વર્ષથી વિજ્ઞાનને બરાબર શોધો ચાલુ થઈ, ત્યારે હકીકતમાં વિજ્ઞાને એ દરેક સુવિધાઓ એ ધીમે 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 વધતી ગઈ. અને એ સુવિધાઓ વધતી ગઈ એટલે હકીકતમાં અત્યાર સુધીમાં માણસ પોતાના શરીરને જીવતું રાખવા માટે, પોતાના શરીરને જીવતું રાખવા માટેનો જે પ્રયત્ન કરવો પડે એ કરવામાં ચાલુ રહ્યો. અને એ પ્રયત્ન કરતો 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 એમાંથી પછી સગવડવાળું કેવી રીતે જીવી શકાય, ઓછી મહેનત કેવી રીતે કરી શકાય, એવી વાત ઉપર આવ્યા. અને ઓછી મહેનતની વાતમાંથી એને વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યો. એટલે વિજ્ઞાને આવી વસ્તુ આપી દીધી કે વિજ્ઞાને શું કીધું કે ભાઈ, તમે 2 વાત આમ તો જોવા જઈએ તો કહીએ છીએ કે આપણા જે આગળના ધર્મશાસ્ત્ર ગણો કે આપણું જે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર ગણો કે આપણા જૂની જે પરંપરા ગણો, તો એ બધી પરંપરાઓએ શું કીધું કે ભાઈ, તમે છે ને તમારી જે કંઈ ઇન્દ્રિયો છે એને તમે કોઈ પણ રીતે દબાવો. આ બધી સુખ દુઃખનું કારણ શરીર છે અને ઇન્દ્રિયોને દબાવો, તમે એને બિલકુલ ચૂપ કરી દો, દબાવી દો. તો કોઈ સાધુ સંતોએ એ ઇન્દ્રિયોને સાધના સમાધિ આવું બધું કરીને ચૂપ કરી. તો આખા ધર્મશાસ્ત્રમાં બધી જગ્યાએ વાત કરી કે ઇન્દ્રિયોને દબાવો. જ્યારે બીજી જગ્યાએ વિજ્ઞાને શું કીધું કે તમારે ઇન્દ્રિયોને દબાવવાની જરૂર નથી, તમારી ઇન્દ્રિયોને જે ખોરાક જે જોઈએ એ બધું જ સ્વર્ગ અમે અહીંયા જો આપીશું. સ્વર્ગની કોઈ બાલની કલ્પના કરવાની જરૂર નથી. આ બધા સ્વર્ગની વાતો જે ધર્મશાસ્ત્રો કરે છે એ તો કદાચ કલ્પનાની વાત છે, અને ક્યારે સ્વર્ગ મળશે એની વાત, પણ તમને અહીંયા ધરતી ઉપર જ સ્વર્ગ અમે આપીશું. તો આ ધરતી ઉપર સ્વર્ગ આપીશું એટલે આજે જુઓ તો બધું જ બટન દબાવવાથી જ આવી જાય. દરેક વસ્તુ તમને કહું કે બટન દબાવવાથી આવતી જાય છે. અને ધીમે 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 કરતો 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 માણસ પોતે અત્યારે એ સ્ટેજ ઉપર આવ્યો. હવે એ સ્ટેજ ઉપર આવ્યો એટલે આપણે માણસ પાસેથી શીખ્યા, અને માણસ પાસેથી શીખ્યા અને પશુ પાસેથી શીખ્યા આ બધું. એટલે આપણી હજુ સુધી જીવ ચેતનામાં જ જીવીએ છીએ.
આપણે હજુ સુધી માનવ ચેતનામાં આગળ વધ્યા જ નથી. હજુ પશુવત જીવીએ છીએ. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને પ્રજનન, આ 4 વાતો પશુમાં છે. અને મોટા ભાગે તમે જુઓ તો મોટા ભાગના સમાજમાં આ 4 વાતો જ છે. એનાથી ઉપરની વાત ઉપર હજુ માણસ ગયો નથી. એટલે ભાઈએ જે વાત કરી કે માનવને સમજવાની વાત છે, કે આપણે અત્યાર સુધીમાં માનવને સમજ્યા જ નથી, તો શિક્ષણમાં માનવને લાવવાની વાત કેવી રીતે આવી શકે? આપણે તો એવું સમજીએ છીએ કે કોઈ પણ માણસ છે એ શું છે કે દરેકની ઈચ્છાઓ અલગ અલગ હોય, દરેકની સમજણ જુદી જુદી હોય, દરેકની ચોઈસ જુદી જુદી હોય. એટલે કોઈ પણ માણસને શિક્ષણમાં લાવીએ તો કયા માણસને ભણાવવાનો? એની કોઈ નિશ્ચિત વસ્તુ જ નથી. તો કેવી રીતે ભણાવી શકાય? તો આ માણસ ખરેખર શું છે કે અનિશ્ચિત છે. એનું બધું અનિશ્ચિત છે. અત્યાર સુધીમાં માણસની એમને એક વાત કરી કે હકીકતમાં કોઈ પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગેડગેટ લાવીએ તો એની સાથે એનું મેન્યુઅલ આવતું હોય. વોશિંગ મશીન લાવીએ, ફ્રીજ લાવીએ, બીજું લાવીએ, ત્રીજું લાવીએ, આપણો સારો મોબાઈલ કોઈ કંઈ પણ હોય કે બીજું, તો પણ એનું એની સાથે આવે કે એને વાપરવાનું કેવી રીતે, ચાલુ કેવી રીતે કરવાનું, પહેલી વખત કેવી રીતે ચાલુ કરવાનું, પછી કેવી રીતે, આ બધું જ આવે. તો આ માણસ પદાર્થથી આપણા ઝાડપાન છે ઉપરની અવસ્થા છે, ઝાડપાનથી પશુ પક્ષી ઉપરની અવસ્થા છે, પશુ પક્ષી એટલે પ્રાણીઓ બધા. હવે એનાથી મનુષ્ય ઉપર અવસ્થા છે. તો આ 3 અવસ્થાઓને કોઈ જગ્યાએ કમાવા જવાની જરૂર નથી, કોઈ જગ્યાએ ભણવાની જરૂર નથી, કોઈ જગ્યાએ ગ્રેજ્યુએશન કરવાની જરૂર નથી. આ બધું કર્યા પછી એમને પ્રકૃતિમાં બધી જ રીતે, કોઈ પણ તમને કહું કે બધા જ એકદમ બરાબર શાંતિથી જીવે છે, એમને કોઈ તકલીફ નથી. બરાબર છે. અને આપણે જોવા જઈએ તો મનુષ્ય એનાથી ઉપરની એક વસ્તુ છે. અને એની ઉપરની એક વસ્તુ હોવા છતાં 20 વર્ષ આ શીખવાનું, ભણવાનું, આ બધું જ કર્યા પછી છેલ્લે બધા જ પ્રોબ્લેમ માણસમાં જ દેખાય છે. અને દિવસે દિવસે ભણતર સાથે વધતા જ જાય છે પાછા. આજે તમને કહું કે પ્રોબ્લેમ જો ખરેખર આજનું એજ્યુકેશન છે, એ એજ્યુકેશન પ્રમાણે ધીમે ધીમે આગળ વધીએ, અને જો એજ્યુકેશન ખરેખર પ્રોબ્લેમ ઓછા કરતું હોય, તો આજે જે વિકસિત દેશો છે, આજે આપણા કરતો યુરોપ, અમેરિકા, આ બધા દેશો છે, એ બધી જગ્યાએ ભણતર આપણા કરતા વધારે છે કે ઓછું છે? તો આ બધી જગ્યાએ સુખ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. પણ એ બધી જગ્યાએ ભાઈએ જે ગૂગલના ડેટા કીધા કે આટલા ટકા બાળકો ત્યાં માતા પિતા વિહોણા, મતલબ શું છે કે એકચ્યુઅલી જન્મે છે લગ્ન આવી રીતે વિધાઉટ મેરેજ, લગ્ન વગર આટલા બધા બાળકો જન્મે છે. આજે ત્યાંના પરિવાર વ્યવસ્થા તૂટતી રહેલી છે, લગ્ન કરવામાં લોકો ઓછું માને છે. આ બધું ધીમે ધીમે જે રીતે થતું જાય છે, તો એનો મતલબ એ થયો કે હકીકતમાં આ જો શિક્ષણ જે પ્રમાણે ચાલે છે ને, આપણે એમને વિકસિત દેશો કહીએ છીએ, તો વિકસિત દેશોમાં આ પ્રોબ્લેમ વધારે છે કે ઓછો છે? તો પછી એમને વિકસિત કહેવા કે અવિકસિત કહેવા? સવાલ તો આ એક ઊભો થાય છે. એટલે એનો મતલબ કે આજનું આજની આપણી જે શિક્ષા છે, શિક્ષણ છે, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે, એ એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં એવી કંઈક ને કંઈક વસ્તુ આપણે કંઈક થાય છે. એટલે એમાં શું છે કે એમાં એમને કીધું કે આ એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં આ પેટ ભરવાનું કામ છે ને, એ પેટ ભરવાનું કામ થાય છે, પણ આ મન ભરવાવાળી કામ છે, એ વાત અત્યાર સુધીમાં એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં નથી આવી. એટલે મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે આપણે માનવની યાત્રામાં અત્યાર સુધીમાં આવતા આપણે એટલી જગ્યાએ આવ્યા છીએ કે આપણે હજુ માનવને સમજ્યા નથી. અને આ એક 2500 વર્ષ પછી આ એક નવું દર્શન આવ્યું છે કે ખરેખર આવી રીતે માણસનું આચરણ પણ નિશ્ચિત છે, અને નિશ્ચિત હોઈ શકે છે. ને એમાં કોઈને બનાવવાની જરૂર નથી. કુદરતમાં એની વ્યવસ્થા છે, પ્રકૃતિમાં એની વ્યવસ્થા છે, અને એના નિયમો નક્કી છે, બધું જ છે. પણ એને આપણે ખરેખર જોયા નથી. હવે જે ભૌતિક શાસ્ત્રના જે નિયમો છે, એ ભૌતિક શાસ્ત્રના નિયમો આજે આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ, હકીકતમાં ન્યૂટને જે નિયમ શોધ્યો ગુરુત્વાકર્ષણનો, તો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધ્યો તો ન્યૂટન નતો, એના પહેલો પણ સફરજન તો નીચે જ પડતું હતું, એના પહેલો સફરજન ઉપર જતું હતું. તો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ તો હતો જ, પણ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ એ વખત ન્યૂટનના ધ્યાનમાં આવ્યો, અને ન્યૂટને એ વાત ઉપરથી પડદો હટાવ્યો અને એને ફોર્મ્યુલામાં મૂક્યું.
બાકી હકીકતમાં નિયમ તો હતો જ. એમ જેટલા વૈજ્ઞાનિકોએ જેટલી વસ્તુઓ કંઈ શોધી છે તો એ શોધી છે એ બધી જ ઓલરેડી પ્રકૃતિમાં હતી જ, પણ એ પ્રકૃતિમાં હતી પણ એના ઉપરથી પડદો ઉઠાવવાનું કામ વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યું છે. એવી રીતે અત્યાર સુધીમાં આપણા જૂના જે કંઈ ઋષિમુનિઓ જે કંઈ બધા થયા એમને પણ થોડો દરેક જગ્યાએ પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ એ પ્રયત્ન કરતા 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 હજુ માણસને સમજવાની વાત આવે તો એ જગ્યાએ વાત જરા ડિફિકલ્ટ આવી જાય છે અને એ જગ્યાએ વાત હજી સુધી આપણે પહોંચ્યા નથી. ત્યારે આ નાગરાજજીએ એક કામ એવું કર્યું કે એમને આ માણસને ખરેખર જે અનુસંધાનની વાત કરીએ છીએ, જે શોધની વાત કરીએ છીએ, એ એટલા માટે વાત છે કે જેમ વૈજ્ઞાનિકોએ પેલા એક ભૌતિક સંસાર ઉપરથી પડદો હટાવ્યો, એમ નાગરાજજીએ આ એક ચૈતન્ય સંસાર ઉપરથી પડદો હટાવ્યો અને એ પડદો હટાવવાથી હકીકતમાં ચૈતન્ય સંસારને પણ ક્લાસરૂમમાં લાવી શકાય છે. આ વાત એમને બહુ અગત્યની વાત કરી અને આ અગત્યની વાત કરી એ હજુ સુધી આપણને બધાને તમને કહું કે આજે સ્કૂલમાં હશે એમને પણ તમને કહું કે સ્કૂલમાં 1.5 કલાક, આપણે સ્કૂલમાં પણ ક્લાસ 45 મિનિટનો જ હોય છે. અહીંયા આ 1.5 ને 2 કલાકના ક્લાસ હોય અને એમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊભું થઈને ના જાય અને કોઈને એવું કહેવું ના પડે, ના ભાઈ બેસો, તમે નહીં જશો, હમણાં ઊભા રહો, તમે આવી કોઈ સૂચના આપવી પડે છે ખરી અહીંયા? અને છતાં પણ બધા જ આપણે આવી રીતે એકદમ શાંતિથી સાંભળીએ છીએ. એનું કારણ શું છે કે આપણી અંદરની મારી પોતાની વાત, મારા શરીરની મને એ મારી પોતાની વાત જે ભાઈ મેં કરીને કહે છે, જે મનની વાત છે, એ વાત અહીંયા કહેવામાં આવે છે ને એમાં આપણને બધાને એનો રસ છે, એટલા માટે આપણને રસ પકડી રાખે. આપણે એ જાણવું છે, અત્યાર સુધીમાં આપણી એ ભૂખ છે, આપણને એ જ્ઞાનની જરૂર છે અને એટલા માટે આપણે બધા અહીંથી બિલકુલ હલતા નથી. લોકોને જીવન વિદ્યા શિબિરની વાત કરીએ છીએ 8 દિવસ અને એમાં 4 સેશન દિવસનો, 4 સેશનમાં 1.5-2 કલાકના, એટલે 6 થી 7 કલાક બેસવાનું. આ વાત કરીએ એટલે ઘણા લોકો તો દૂરથી જ નમસ્કાર કરે, ભાઈ એટલું બધું બેસવાનું હોય ને અમે તો એ ના બેસી શકીએ, એ તો હવે પછી ઉંમર થશે જોઈશું, હાલ તો વાત નહીં કરશો. હવે ક્લાસમાં નહીં બેઠા 45 મિનિટ, પછી તમે આવી રીતે બેસવાની વાત કરો તો કેવી રીતે મેળ આવે? પછી એક પાછું શું છે, ત્યાં તમે કોઈ આમ તમારે ત્યાં આપણા ઢોલક, તબલા, હાથ, એ સંગીત, બીજું બધું આવું તેવું કંઈ હશે? અમે કીધું ના, એવું કંઈ નહીં હોય. તો કે વક્તા પછી વારંવાર બીજા બદલાઈને આવશે, શું થશે? તો કે ના, એક જ વક્તા હશે. તો કે યાર બોર થઈ જવાય કે આવી સંજોગોમાં આ શિબિરમાં તો એવી રીતે 8 દિવસ સુધી શું તમે બોલે છે હું માણસ? એટલે સામેવાળા વ્યક્તિને, સામેવાળાને આપણે આવું એક્સપ્લેન જ નથી કરી શકતા કે શું બોલે છે. આપણી ત્યાં લિમિટેશન આવી જાય, ભાઈ તમે એક વખત આવો, મહેરબાની કરીને અમારા ઉપર કૃપા કરો, તમે આવો તો તમને ખબર પડે. એટલે આ આખી વાત છે ને એને ભાઈએ જરા આવી રીતે કહે છે, એટલે આ આપણી પોતાની વાત થાય છે. મારું કહેવાનો મિનિંગ એ છે. બીજી એક વસ્તુ એમને કીધી, એમની જે આપણી શિબિરમાં બેસવાની પૂર્વ શરતો એમને જે વાત કરી એના ઉપર જરા હું વાત કરી લઉં. તો એમને કીધું કે કોઈ વસ્તુ માનવાની નથી. આપણે બધા બેઠા છીએ એટલે પહેલી વાત એવી છે કે અહીંયાથી જે કંઈ કહેવામાં આવે એ તમારે માની લેવાની વાત નથી કરવાની. તમને પોતાને લાગે છે કે મારા આના સામે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવી છે, આ વાત આવી ના હોઈ શકે, આવી છે, હું આવું સમજુ છું, તો આપણે બધાને હાથ ઊંચો કરી, ફોન માઇક બોલા અને ગમે ત્યારે હાથ ઊંચો કરીને વચ્ચે પૂછવાની આપણી છૂટ છે વિષયના સંદર્ભમાં. બરાબર છે? અમુક શિબિરમાં વચ્ચે વચ્ચે ભાઈ કહેશે કે આ વાતમાં असम्मत होने का कोशिश करे, एवी बात पर बोलશે ભાઈ. એટલે અસંમત થવાની કોશિશ કરજે, એટલે તમે આ વાતને બીજી રીતે બીજા ઉદાહરણોથી ખોટી છે એવું સાબિત કરવાની કોશિશ કરો તો તમને ખબર પડશે કે આ વાત છે ને એ હકીકતમાં હું સાબિત નથી કરી શકતો ખોટી. તો આ બધા જ માણસો માટે લાગુ પડી શકે, એટલા માટે માનવાનું નથી. તમારે આ વસ્તુ શું છે? બીજું ભાઈએ કીધું કે અહીંયા કોઈને એવું કહેવામાં નહીં આવે કે તમે આ છોડી દો, આ કરી દો, તમે આ કોઈ પણ વસ્તુ છોડી દેવાની વાત છે ને કશી કરવાનું. હાલ તમે જેવું જીવો છો એવું જીવો, બીજું કશું જ નહીં. કોઈ વાત છોડવાની વાત નહીં, એક પણ વસ્તુ છોડવાની વાત કહેવામાં આવે. અહીંયા કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપદેશ આપવામાં નહીં આવે. તમારે આવું કરવાનું, હવે આવું કરવાનું, ઘરે જઈને સવારમાં આટલા વાગે ઉઠવાનું, આટલા વાગે આ કરવાનું, હવે આ ખાવાનું, ના ખાવાનું, એવી કોઈ વાત અહીંયા કહેવામાં નહીં આવે. તમે જેવું જીવો છો એમાંથી હાલ 1% તમારે કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. બરાબર છે? એ કરો ઓર ન કરો, એટલે આ કરો ના કરો એવી વાત, એટલે કોઈ જાતનો કરો ના કરોમાં ઉપદેશ પણ નહીં હોય, કશું નહીં હોય.
બીજી વાત છે, અહીંયા એવું કંઈ નહીં કહેવામાં આવે કે આવું કરવું જોઈએ, ચાહીએ આપણે બધાને આવું કરવું જોઈએ, આપણે આવું કરવું જોઈએ, સરકારને આવું કરવું જોઈએ, બીજા બધાને આવું, આપણે મોટા ભાગે આવું કરવું જોઈએ, ચાહીએ, કરના ચાહીએ હિન્દીમાં બોલીએ તે, અને આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ તો આવું કરવું જોઈએ. આવી ભાષામાં બધી જ જગ્યાએ મોટા બધા લોકો છે ને આવી રીતે ઉપનિષદની ભાષા જ બોલે છે, બરાબર છે. તો આવું કરવું જોઈએ, એસા કરના ચાહીએ. ભૈયાને બતાયા, એમને કીધું કે હું આવું એક પણ વખત નહીં બોલું, 8 દિવસમાં હું એક પણ વખત એવું બોલું તમે આવું કરવું જોઈએ એવું એ વાત નહીં બોલું. એટલે આ એક પણ મતલબ સમજી લો કે આખી વસ્તુ છે. હવે એમને એ વાત કરી કે આટલી વાતો છે, આ વાતો આપણે જો ઘરમાં આટલી વાતો ના કરવાની હોય તો આપણે ઘરમાં કરીએ હું? આપણે આ જ કામ કરીએ છીએ ઘરમાં, પરિવારમાં બાળકો ઉપર, પત્ની ઉપર, બીજા ત્રીજે. મારી પત્ની સાંભળે છે ને બોલું છું, બરાબર છે, પણ અને આવું કરતા જ રહેલા છીએ. તો આ બધી જ વસ્તુઓ શું છે કે એકચ્યુઅલી આપણે આપણા ઘરમાં આ જ કરતા રહેલા છીએ, અને એના સિવાયનું આપણી પાસે હવે એમાં કોઈનો વાંક નથી, કોઈનો વાંક નથી. એનું કારણ છે કે એકચ્યુઅલી અત્યાર સુધીમાં માણસને ખરેખર સમજવામાં જ નથી આવ્યો, તો પછી કોઈની પાસે એ વાત નથી તો આપણે અપેક્ષા કેવી રીતે રાખી શકીએ? બરાબર. દરેક વ્યક્તિ સારું કરવાનો, ખુશી થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમાં આ વસ્તુ થાય છે. બીજું આ છે, આ પ્રસ્તાવના રૂપમાં છે, મધ્યસ્થ દર્શન છે. આ આખી વાત છે એ તમારા સામે એક વસ્તુ મૂકવામાં આવે છે કે ભાઈ આવી વસ્તુ હોઈ શકે. આ પ્રસ્તાવની ભાષા છે, તમે તમારી જાતે ચકાસો, તમે તમારી જાતને પૂછી શકો, તમે બીજી બધી રીતે વિચાર કરીને ચેક કરી જુઓ. તમને પોતાને એવું લાગે કે આ વસ્તુ મારા જીવનમાં કામમાં આવેલી છે, મારા બાળકોના ભવિષ્ય માટે કામમાં આવી છે, હું જે જીવું છું, જે જગ્યાએ જે વાતાવરણમાં જીવું છે, બધા માટે કામમાં આવેલી છે, તો એમાં યોગ્ય લાગે તો સ્વીકારવાની એટલે સ્વીકારવાનું તો બીજું કશું, એવું યોગ્ય લાગે તો આને સમજવાની કોશિશ આગળ કરવાની છે. બાકી જોવા જઈએ તો આ પ્રસ્તાવ છે, અહીંયા કોઈને આવું બધું ઉપદેશ અથવા આ કરો ના કરો એવું કહેવાની વાત આવતી નથી, બરાબર છે. બીજી આ વાત એમને કીધી કે આ વાત યુનિવર્સલ છે. યુનિવર્સલ એટલે શું કે આજે તમને કહું કે સાર્વભૌમ આખી ધરતી ઉપર અથવા બીજી કોઈ ધરતી ઉપર પણ જો કોઈ માણસ હોય તો એ માણસ માત્રને કામ લાગે એવી વસ્તુ હોય તો એને યુનિવર્સલ કહેવાય, બરાબર છે. બીજી વાત છે કે ગમે તેટલા એની પાછળ આપણે તર્ક લગાવીએ તો એ તર્કમાં એને બિલકુલ આપણે ખોટું ના પાડી શકીએ એવી વાત હોય ત્યારે એને તર્કપૂર્ણ કહી શકાય, એટલે યુનિવર્સલ લોજિકલ. પછી આ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ એટલે શું છે કે આ વાત છે, હવે અત્યારે આપણા જૂના શાસ્ત્રોમાં કહીએ કે ભાઈ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન તો કોઈ વિરલા લોકો જ સમજી શકે, બધા લોકો માટે જ્ઞાનની વાત નથી, કોમન માણસને તો જ્ઞાનની વાત નથી. કોઈ વિરલો હોય અને કોઈએ સમાધિ સાધના કરી હોય એ જ સમજી શકે, એના સિવાય બીજા બધાનું જ્ઞાન નથી. બીજા બધાને તો એના ચરણોમાં જઈ એને નમસ્કાર કરીને એ કોઈ કૃપા કરે તો જ આપણામાં જ્ઞાન આવે અથવા થોડો ઘણો કંઈ ફરક આવે, બાકી જ્ઞાનનો તો આ બધાને આપણે ઠેકો આપેલો છે. એવી વાત અહીંયા નથી. અહીંયા શું કહે છે કે બધા જ લોકો આ વસ્તુ સમજી શકાય, એટલે આની વાત છે એ સમજી શકાય એવી વાત છે, એવી વાત છે. બીજું, જે વાત સમજી શકાય એને જીવનમાં પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકાય અને બધા જ લોકો એની પ્રેક્ટિસ કરી શકે, એ જ વાત છે ને આ પ્રેક્ટિસેબલ છે. અને પ્રેક્ટિસેબલ હોય એટલે એને રેપ્લિકેબલ કરી શકાય. આજે હું કરું એવું બીજો કરી શકે, બીજા પાસે કરાવી શકાય એવી વાત હોય તો રેપ્લિકેબલ હોય, અને એ રેપ્લિકેબલ હોય તો એને પછી આપણે વેરીફાઈ કરવી હોય કે હકીકતમાં આપણે જો વિચારતા હતા એવું રિઝલ્ટ આવ્યું કે નહીં. આ રિઝલ્ટની વાત હોય તો એ રીતે એને વેરીફાઈ પણ કરી શકાય. અને આટલી વાતો હોય તો જ એજ્યુકેશનમાં આવી શકે, નહીતર એજ્યુકેશનમાં ચેલેન્જ થાય. અહીંયા કોઈ ધર્મની કોઈ બીજી કોઈ વાત એવી નથી આવતી કે જેથી શું છે કે કોઈ ધાર્મિક પુસ્તકની, કોઈ ધાર્મિકમાં જૂના કોઈ ઋષિમુનિ કે કોઈનો રેફરન્સ બિલકુલ ક્યાંય જગ્યાએ કોઈનું, કારણ કે એવી બધી વાત આવે તો આજે હું કૃષ્ણ કે રામને માનું છું તો આજે વર્લ્ડમાં બધા જ લોકો કૃષ્ણ અને રામને માને છે એવું થોડું છે? તો આ વાત ક્લાસરૂમમાં જશે નહીં. અને આપણે જે એજ્યુકેશનમાં વાત કરીએ છીએ આખા વર્લ્ડના દરેક માણસ માત્રના એજ્યુકેશનની વાત ચાલે છે. એટલા માટે આ વસ્તુ આવી રીતની છે, એ વસ્તુને તમે આખા 7 દિવસ દરમિયાન તમે ચકાસી શકો છો, બરાબર છે. બીજું, એમને સાંભળવા માટેની પૂર્વ શરતો રાખી, બરાબર છે. અને સાંભળવા માટેની પૂર્વ શરતો હતી, હા, તો એમાં શું છે કે આપણે જે એકબીજાની સરખામણી કરવાની વાત છે, એ સરખામણીની વાત છે ને એ એક વિચારવાનો મુદ્દો છે કે આપણે
કોઈને પણ મતલબ શું છે કે મેં આગળ કંઈ સાંભળ્યું છે, મેં આગળ કંઈક બીજું કંઈક કોઈને હું માનતો હતો, તો એ જે કહેતા હતા એ અને આમાં આ ફરક આવે છે, એના બે સરખું જ કહે છે એવું એટલે આપણે સતત શું છે કે એ વિચારીએ તો હકીકતમાં અહીંયા શું કહેવાય છે એની ખબર પડે નહીં. બરાબર છે. અને વ્યક્તિગત સમસ્યા છે ને, આપણી પોતાની પ્રેક્ટિકલ સમસ્યા હોય તો અત્યારે જે પ્રોબ્લેમમાં આપણે ઝઝૂમતા હોઈએ તો એ પ્રોબ્લેમનું હાલના હાલ એમાં સોલ્યુશન શોધવાની કોશિશ ના કરીએ. નહીતર આપણે એ પ્રોબ્લેમને સોલ્યુશનમાં ગૂંચવાશું તો જે વાત કહેવાતી છે એમાં આપણું ધ્યાન હશે નહીં. અને બીજું શું છે કે આજે આપણે આટલો સમય કાઢીને આવ્યા છીએ, 8 દિવસનો સમય ઓછો સમય નથી, આટલો સમય કાઢીને આવ્યા છીએ, તો મારે બધા પ્રશ્નો જેટલા હોય એટલા કરવાના, પણ હકીકતમાં મારે ઓપન માઇન્ડ રહી અને કોઈ વાત ખરેખર સમજવા લાગે તો મારી સમજવાની જિમ્મેદારી છે, એવી જવાબદારીના ભાવરૂપે આખી વાતને લેવાની છે. બીજું એમને કીધું કે સમજવાનું છે ને એ મારી બાજુનો સમજે, મારી સાથે આવેલા લોકો સમજે છે કે નથી સમજ્યા, આની કોઈનો વિચાર કર્યા વગર પોતાની જાતને સમજવાની વાત છે. અને સમજના સ્વયં में होता है और जीना परिवार में होता है. અને જીવવાની વાત છે એ પરિવારમાં થાય. હકીકતમાં જો પરિવારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પરિવારમાં છૂપો રહી શકતો નથી. એની સારી ખરાબ જેવી રીતનું વ્યવહાર વર્તન આ બધી જ વસ્તુ પરિવારમાં એની કોઈ દિવસ છૂટતી નથી. એટલે જ્યારે પરિવારમાં કોઈ પણ વસ્તુ પ્રમાણિત કરવાની હોય કે ના આ વ્યક્તિ એ બરાબર છે અમારા ઘરમાં વ્યક્તિ, તો એ વાત છે ને એ પરિવાર જ્યારે કહે ત્યારે જ એ વાત પેલી છે. એટલે જીવવાનું ખરેખર પરિવારમાં થાય છે. એટલે આ એક વાત એમને વાત કરી. સમય થઈ ગયો, ભાઈ આવી જશે એના પહેલા જરા આ વસ્તુની વાત કરી લઈએ. તો આજે શિક્ષણની વાત કરી તો શિક્ષણમાં બાળક ખરેખર જન્મ છે ત્યારે એક જિજ્ઞાસુ હોય છે. બરાબર છે. આજે ન્યાય એને ન્યાય શું છે એને ખબર નથી, પણ એને ન્યાય ઈચ્છે છે. તમે 2 છોકરાઓને ચોકલેટ વધતી ઓછી આપો તો શું કહે છે, પહેલાને કેમ વધારે આપી, મને કેમ ઓછી આપી. બરાબર છે. એ ન્યાયનો ચાહક છે. ન્યાય કેવી રીતે કરવો એને ખબર નથી અત્યારે, પણ ન્યાયનો ચાહક છે, જિજ્ઞાસુ છે. એમને એક ઉદાહરણ આપ્યું કે 2 વર્ષનું બાળક એ ખાવાનું વધારે માંગે છે કે પ્રશ્નો વધારે પૂછે છે? તો હકીકતમાં પ્રશ્નો વધારે પૂછે છે. એટલે એની ખાવાની વાત કરતો પ્રશ્નોની વાત છે એ એની મોટી જવાબદારી છે. એટલે મોટી એની જ્ઞાનની ભૂખ છે, એની મોટી વાત છે. સત્ય વક્તા છે. એટલે આજે શું છે કે આ જ વ્યક્તિ એ નાનું બાળક એ આજે કોઈ પણ ફોન કરે કે તારા પપ્પા કયો છે, તો શું છે કે એકચ્યુઅલી પપ્પાએ એને કંઈ કહી દે ઘરમાં નથી પપ્પા, તો એ ફોનમાં એવું જ કે મારા પપ્પા એવું કહે છે કે ઘરમાં નથી. બરાબર. આ જે આવી વાત કરે એનો મતલબ શું થયો કે એને પોતાનું તો એ સાચું જ બોલવા માંગે છે, આપણે એને ખોટી બધી વસ્તુ શીખવાડવાની વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ. બીજું એ કોઈ પણ વસ્તુ છે કે એ સાચો કાર્ય વ્યવહાર કરવા માંગે છે, પણ આપણી આ બધી જ વસ્તુઓ 20 લાખથી 25 મતલબ 20 સાલની ઉંમર આપણે લગાવીએ છીએ, એમાં 20 થી 25 લાખ રૂપિયાનો 50 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરીએ છીએ. અને આપણી જે શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે એમાં સમાજ આવી ગયો, સરકાર આવી ગયો, પરિવાર આવી ગયો અને શિક્ષક આવી ગયો. આ બધા જ આટલી મહેનત કરીને આટલી મોટી એની પાછળની એનર્જી લાગે છે, અને એ એનર્જી લાગ્યા પછી છેલ્લે જતો 20-25 વર્ષનો વ્યક્તિ એ જે બહાર નીકળે છે ત્યારે ખરેખર એની જે માનસિકતા છે એ માનસિકતામાં કયા દ્રષ્ટિકોણની માનસિકતા આવે છે કે એનો ધન પૈસા માટે એની શું મતલબ એનો દ્રષ્ટિકોણ શું બને છે, સ્ત્રી પુરુષ સંબંધ બાબતમાં એનો શું બને છે, અને માનવથી માનવ સાથે અને માનવની પ્રકૃતિ સાથે. બરાબર છે. તો એની સાથેનો દ્રષ્ટિકોણ એનો શું બને છે એ એક વાત. અને એ દ્રષ્ટિકોણ બનતો આપણને જોઈએ છે કે આ દ્રષ્ટિકોણમાં હકીકતમાં આ ધનની વાત છે તો એમાં સમજે છે કે પૈસાથી જ બધું થાય છે. આ તમે આપણે જોઈએ તો બધી જ જગ્યાએ લગભગ 99% ઉપરનું મોટા ભાગે મૂકીએ તો બધા જ પૈસાથી સબ કુછ હોતા હૈ. એટલે આ જે વાત છે ધન ही सब कुछ है. ઇન્દ્રિયોમાં એટલે ઇન્દ્રિયોથી જ સુખ મળે એટલે ખાઓ પીઓનો મજા કરો. બરાબર છે. બીજું જન્મ મળશે નહીં મળે કોને કીધી છે કોને ખબર છે, હમણાં જ આ બધું મેળવી લો અને ભોગવી લો. ઇન્દ્રિયોમાં સારા સુખ છે અને સુવિધાઈ જીવનશૈલી છે. એટલે જેટલી સગવડો વધારે હોય એટલી કરતા જાઓ અને આવી રીતે કરીને સુવિધાઈ જીવનશૈલી છે. એટલે આ સાધનો તમે સંઘરતા જાઓ અને જેટલી સુવિધા વધારતા જઈએ એટલે આ વાત છે ને દિવસે દિવસે ધરતીનું જે થવું હોય થાય, પણ મારી સુવિધાઓ વધે એના માટેની વાત આવે છે. અને આ વાત આવે એટલે શું થાય કે એમાં શું છે કે એકચ્યુઅલી સંબંધ અને સાધન આમાં જ આ વ્યક્તિ આવી ટાઈપની માનસિકતાવાળો વ્યક્તિ છે એ હંમેશા શું છે
કે સંબંધ માટે એ સાધનનો ઉપયોગ, સંબંધ માટે સાધનનો ઉપયોગ ને સાધનનો માટે સંબંધનો ઉપયોગ, આ બંનેમાં એ હંમેશા શું છે કે સંબંધનું જે થવું હોય થાય, મારે તો પૈસા જ જોઈએ, બરાબર છે. એટલે સાધન માટે સંબંધનું જે થવું હોય થાય ને આપણે જોઈએ છે અત્યારે મોટા ભાગે. તમને કહું કે પરિવારમાં, ભાઈઓમાં, બીજે બધે ગમે ત્યાં પાર્ટનરોમાં, બીજે બધે પૈસા માટે મતલબ શું છે કે એકચ્યુઅલી શુંની શું વસ્તુ થાય છે એના માટે કોઈ એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. આપણા પાસે બધા પાસે પૂરતા દાખલા છે. એટલે એવી ટાઈપનો ઉપયોગ થાય અને આવી માનસિકતા આવે એ માણસ ભાવશૂન્ય હોય અને એવો વ્યક્તિની અંદર અહંકાર આવે, ભોગ, શોષણ અને આ વસ્તુ આખી થાય તો અવ્યવસ્થા ઊભી થાય. આ આખી વાત છે ને એ ટૂંકમાં શિક્ષણ આપણને આ જગ્યાએ લઈ જાય છે. અને એ શિક્ષણ એ કેમ આવું થાય છે એનું કારણ શું છે કે આ અર્થશાસ્ત્ર છે એ શું છે કે લાભોન્માદી અર્થશાસ્ત્ર છે. અને લાભોન્માદી અર્થશાસ્ત્ર એ શું શીખવાડે છે કે અહીંયા આપણી આવશ્યકતાઓ છે ને ઘણી બધી છે અને આ ધરતી ઉપર બહુ સીમિત વસ્તુઓ છે. હવે મારે શું છે કે જ્યારે આવી રીતે જો આવશ્યકતાઓ બધાની પુષ્કળ હોય અને વસ્તુઓ ઓછી હોય તો હંમેશા લાઈન લાગવાની જ છે. બસમાં ચડતી વખતે શું છે કે તમને કહું કે બસની 45 સીટો હોય એવી આપણને ખબર હોય અને આપણે 10 જ જણા ઊભા હોય તોય ખબર હોય તો પણ આપણે બસમાં ચડતી વખત ધક્કા મૂકી કરીએ કારણ કે બારીવાળી સીટ લેવાની, કારણ કે બારીવાળી સીટ છે ઓછી. તો એનો મતલબ એ છે કે હંમેશા શું છે કે આવશ્યકતાઓ વધારે હોય ને વસ્તુ ઓછી હોય તો હંમેશા આ થવાનું છે. એટલે લાભોન્માદી એટલે હંમેશા એની તરફ માણસ જવાનો છે. બીજું મનોવિજ્ઞાન કેવું છે કે મનોવિજ્ઞાન એવું કહે છે કે ભાઈ સેક્સ એટલે કામથી આ બધું જ જે વિચારે છે દરેક વ્યક્તિ સેક્સના માટે જ વિચારે છે. અને એના માટે તમે જુઓ તો આજના બધા જ પિક્ચરો, આજની બધી એડવર્ટાઇઝ, આટલું બધું જ તમે જુઓ તો એમાં એના ઉપરથી આખી વસ્તુ એના માટે પણ બહુ ડિટેલમાં કહેવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. એટલે એ વાત છે. અને દિવસે દિવસે આ સમાજશાસ્ત્ર છે એ શું છે કે એકચ્યુઅલી જેને કહીએ ને કે બલશાલી જીએગા એટલે સર્વાઈવલ ઓફ ધ ફિટેસ્ટ, આપણે ડાર્વિનનો નિયમ સમજીએ છીએ કે જે બળશાળી હશે એ જીવશે. તો એ વાત છે. તો આખી વાતને ટૂંકમાં આખું આપણું જે અભ્યાસ છે આપણને આવી રીતે જો શીખવાડતું હોય તો એમાંથી આ જ માનસિકતા આવે, એમાં કોઈ બીજી વાત આવતી નથી. અને એની જગ્યાએ આ મધ્યસ્થ દર્શન અર્થશાસ્ત્ર જે છે એ લાભોન્માદીની જગ્યાએ આવર્તનશીલ અર્થશાસ્ત્ર, આ બધાનું ડિટેલ આપણે આગળ જોવાનું છે એટલે હું ડિટેલ વાત કરતો નથી, બરાબર છે. આ કામોન્માદી મનોવિજ્ઞાન છે, જે મનોવિજ્ઞાન છે કામોન્વાદી, તો એને છે ને એને મનોસંજોતનાવાદી મનોવિજ્ઞાન તરીકે એને આગળ લઈશું. અને ભોગોન્માદી સમાજશાસ્ત્ર છે એને પણ આપણે આગળ શું છે કે સમાજશાસ્ત્ર પણ ભોગોન્માદી સમાજશાસ્ત્રની જગ્યાએ भैया जरा हेल्प करिए, ये शब्द भूल गया. हाँ, व्यवहारवादी समाजशास्त्र. हाँ, तो नवा विद्यार्थी सब लोग मेरे कंसिडर कर दिया है नए विद्यार्थी ऐसे. તો વ્યવહારવાદી સમાજશાસ્ત્ર એટલે માનવ માણસ સાથેના વ્યવહારમાં ભોગ છે એટલે સંબંધનો, વ્યવહારવાદી સમાજશાસ્ત્ર આવશે તો સંબંધ મોટો આવશે અને ભોગોન્માદી સમાજશાસ્ત્ર આવશે તો સાધન મોટું આવશે. તો આ વાત એ હકીકતમાં શું છે કે આજનું શિક્ષણ આપણને લઈ જાય છે. અને એમાં બધાએ કીધું કે ખરેખર આ શિક્ષણમાં આમૂલચૂલ પરિવર્તનની જરૂર છે. હવે ઉપરના લેવલે શિક્ષણ જ્યારે બદલાય ત્યારે બદલાય, પણ આપણે પોતે આપણા બાળકો, કોઈના પુત્ર પુત્રી, કોઈના પૌત્ર પૌત્રી, આ બધા જ આપણે લોકો છીએ. તો આપણે તો આપણી રીતે જીવવાનું ચાલુ કરીએ, આપણા બાળકો માટે એના માટેનો તો પ્રયત્ન કરીએ. અને એના માટેનો આ પ્રયત્ન થતો રહેલો છે. ભૈયા આવી ગયા છે, હું સમય વધારે લેતો નથી. જેટલી વાત કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો એમાં જેટલી વસ્તુ સારી છે એ બરાબર છે. કોઈ જગ્યાએ કંઈ મલિનતા હોય તો એ મારી છે. આ દર્શનમાં કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નથી. દર્શન મલિનતા મારી છે એવું સમજીને માફ કરજો.
हेलो हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो ब्रेक के पहले की जर्नी में हमने देखा कि गैप कहाँ पे। देखिए बेसिकली आज शाम तक हम गैप देखा, और गैप को कैसे भरना है और क्यों नहीं भर पा रहे हैं इसको देखेंगे। तो प्रॉब्लम का रूट कॉज लोकेट हो जाए, और प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है तो उसके लिए अपने पास अगले 6 दिन। तो आज की डेट में कम से कम हम क्लियर निष्कर्षों पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे की कमी है, पैसा आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को लगता है कुछ और होने से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक कॉज है यदि उसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो ज़िंदगी के 30 40 50 साल गुजर जाने के बाद लगता है कि नहीं, जिस चीज़ की तलाश में हम निकले थे वो तो हाथ में नहीं आ रहा। तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो एक स्टेप पे ये चर्चा करते हैं कि आखिर हम सभी चाहते क्या हैं। चाहते क्या हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि कर क्या रहे हैं उस चाहत को पाने के लिए। कर क्या रहे हैं, गैप हमने एक लेवल पे गैप को देखा है, इस गैप को फिर भरेंगे, क्यों गैप है और कैसे उसको पूरा करेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं। तो चलिए, चाहते क्या हैं, तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि जितनी बात अभी तक की है उसमें ये बात बहुत क्लियरली आ गई कि बेसिकली हम खुश रहना चाहते हैं। हम सभी खुश रहना चाहते हैं। कितना? संडे टू संडे? कितना? हमेशा। और ऐसा मैं ही रहना चाहता हूं कि सभी रहना चाहते हैं? जितने चले गए, जितने आने वाले हैं, सभी ऐसे ही हैं। इसका मतलब यदि सभी ऐसे ही हैं तो ये कुछ मेरा सोचा हुआ है या कुछ ये एग्जिस्टेंशियल है, नेचुरल है? यदि सभी ऐसे ही सोच रहे हैं तो ये मेरा सोचा हुआ नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल है, नेचुरल है। तो ये समझ में आया कि हम सभी खुश रहना चाहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि खुश कैसे रहें और खुश क्यों नहीं रह पा रहे। तो स्मार्ट बनना है कि खुश रहना? खुश रहना। किसने कहा कि यार तुम इतने स्मार्ट हो तो खुश क्यों नहीं? इतनी लंबी चौड़ी बातें करके लास्ट में हवा थोड़े से में निकल जाती है। केवल अपने आप से पूछिए कि क्या मैं खुश हूं? जितना खुश रहना चाहता हूं उतना खुश हूं? फिर एक और महत्वपूर्ण बात है, खुश होके कुछ करना है कि करके खुश होना है? क्या लगता है? खुश होके कुछ करना है कि करके खुश होना है? तो कितने लोगों को लगता है कि खुश होके करना है? देखो, तुरंत सामने टिक करना है तो अपन ठीक पहचान लेते हैं। हम कैसा जी रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं कि करके खुश होने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे फिल्म ही क्यों ना बनाए, हम कुछ करके खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम फिल्म बनाएं कि यूनिवर्सिटी बनाएं कि फैक्ट्री बनाएं, है ना, कुछ भी करें हमको लगता है कुछ करने से खुश होंगे। जबकि कुछ भी करने से जो दो तरह के शब्द और हैं,
जैसे अच्छा लगना और अच्छा होना। तो जब भी हम कुछ करते हैं वो अच्छा लगने की सीमा में जाता है कि अच्छा होने की सीमा में चला जाता है। तो बेसिकली अच्छा लगना और अच्छा होना, जैसे मैं कहूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो पर हो नहीं। लग रहे हो मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपकी शक्ल सूरत कपड़े पहनावा ये सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा लगना और अच्छा होना, आप अच्छे हो नहीं जब कह रहे हैं तो आपके बारे कुछ कह रहे हैं, जब लगने के बारे कुछ कह रहे हैं तो शरीर के बारे कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब मैं और शरीर दो अलग अलग रियलिटी है। दोनों को ठीक से अलग अलग पहचानने की कोशिश करने की ज़रूरत है। बहुत सारे शब्द हमारे बीच में प्रचलित हैं, एक्सप्लोर द सेल्फ और सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आत्म, बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं। लेकिन सही अर्थों में वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि केवल सुनी हुई चीज़ें हैं, ये कहना थोड़ा सा और आगे की बात होगी। तो यहाँ से हम ये चर्चा शुरू करते हैं कि बेसिकली मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो खुश रहने का, जैसे मैं दो शब्द आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ, गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, दोनों में क्या अंतर है? गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात। कितने लोगों को लगता है अलग बात है? काफी लोगों को। कितने लोग तक एक ही बात है? एक ही बात है। आपको एक ही बात लग रही? कितने लोगों को एक ही बात लग रही है? हाथ उठाएं, संकोच ना करें। वो देखो बाहरी कंफ्यूजन। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास, तो किसी व्यक्ति को गाड़ी अच्छी चलानी आती होगी तो क्या ये संभव है कि उसके रिलेशन भी उतने ही अच्छे होंगे? तो गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास है, स्वयं के प्रति विश्वास जिंदगी चलाने के प्रति विश्वास। दोनों में अंतर है कि नहीं? दो अलग अलग बातें। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर, कब दबाना है कब नहीं दबाना है, कैसी रोड पे कितना खोलना है। तो क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर हैंडल के कॉम्बिनेशन को हम सही से प्रयोग करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके तो ये गाड़ी चलाना हुआ। और जिंदगी चलाना, तो गाड़ी चलाना आता है, जिंदगी चलाना नहीं आता है। दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? अब बोलोगे नहीं? हाँ, दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? अपनों से पाया। और अपनों से ज्यादा पाया कि अपने आप से ज्यादा पाया? अपने आप से ज्यादा पाया। देने वाले ने एक बार गाली दिया था, देने वाले ने एक बार अपमान किया था और मैंने उसको याद करके हजारों बार अपमानित हुआ हूं, हजारों बार दुख पाया हूं। मैंने ऐसे ही नहीं दुख पाया, बहुत मेहनत किया हूं। हम सब काफी मेहनती लोग हैं, दुखी होने के लिए संकल्पित हैं। रोज सुबह उठ के संकल्प लेते हैं आज शाम तक दुखी होकर रहूंगा और शाम तक सफल हो जाता हूं। इस मामले में हम सेल्फ रिलायंट हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। तो यहां से ये समझ में आया कि बेसिकली जब हम गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कर रहे हैं तो हमको पता है कि क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर को के साथ में कॉम्बिनेशन को बिठाना है। लेकिन जब मैं स्वयं के प्रति विश्वास कह रहा हूं, जिंदगी के प्रति विश्वास कह रहा हूं, तो क्लच प्लेट कहां है? किसको पकड़ूं? किसके ऊपर कंट्रोल बनाऊं? बात पहुंच रही? तो बताइए जिंदगी के क्लच प्लेट कहां है? अपने हाथ में कहां है? हाथ में होते तो फिर क्या बात होती। जिंदगी का क्लच प्लेट हाथ में नहीं, गाड़ी का क्लच प्लेट हाथ में रहता है। जिंदगी का क्लच प्लेट क्या है? क्लच प्लेट एक्सीलरेटर हैंडल। जिंदगी कहां है, कहां से पकड़ें? बोलो भाई। जिंदगी मतलब क्या?
आप तो फैक्ट्री के बाद में बोर्ड लगवा देना। डायमंड ही नहीं, हम मानव बनाते। वो यवतमाल में एक सज्जन का वो डीलरशिप है, ऑटो होंडा के किसके ऑटो आते हैं, वो ऑटो बेचते हैं। उस भाई का बहुत मन लग गया और 15 का स्टाफ है, उनका शोरूम है। तो इस शिविर में वो खुद और 5 लोगों को लेके आए। तो बोले हम आगे कैसे करना है, करना क्या है? ऑटो तो 24 घंटे बिकता नहीं है, दिन में 1-2 बिकता होगा, उसमें कितना देर लगता है? 1 घंटे में उसके कागज बनवा दिए, ज्यादा काम क्या है? तो मैं आप घर के और अपनी दुकान के हमारे बोर्ड लगवा दो, ऑटो ही नहीं जिंदगी भी बेचते। बोले ये ठीक। तो देखो ये कह रहे हैं कि ना तो अपना घर अभी धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे भारतीय महिलाओं को भारी डर है कि ये जब इस चक्कर में आएगा तो घर छोड़ के भागेगा और अपनी फैक्ट्री छोड़ के भागेगा, जवाबदारियां छोड़ के भागेगा। ज्ञान की तलाश में ये सब हमने किया है। अब ये कह रहे हैं कि अपने घर को स्वर्ग बनाने की जरूरत है, अपनी फैक्ट्री को स्वर्ग बनाने की जरूरत है, अपने ऑफिस को स्वर्ग बनाने की जरूरत है। कुछ छोड़ना नहीं है, जो पकड़ा ही हुआ है उसको सही अर्थों में पकड़ने की, सफल करने की जरूरत है। ये काम बहुत आसान लगता है, बहुत सरल लगता है, सहज लगता है। तो ये कह रहे हैं कि हम घर में हैं तो भी जिंदगी के साथ हैं, ऑफिस में हैं तो भी जिंदगी के साथ हैं। गाड़ी का तो समझ में आ गया, गाड़ी चलानी है तो क्लच प्लेट एक्सीलरेटर की जरूरत है। जिंदगी का क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर कहां है? तो ये कह रहे हैं कि भाव और विचार जिंदगी का क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर है। भाव और विचार से जिंदगी को पकड़ा जा सकता है। तो एक बात समझ में आई कि जब भी मैं सुखी दुखी होता हूं, मेरे भाव और विचार में कोई गड़बड़ी होती है, मेरा भाव और विचार सकारात्मक है, इसका नाम सुख है। मेरे भाव और विचार में नकारात्मकता है, समस्या है, इसका नाम दुख है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति मेरे को डायरेक्टली दुखी नहीं करता है, वो कुछ ऐसा बोलता है जिससे मेरे भाव और विचार प्रभावित हो जाते हैं। और एक ही घटना से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक प्रिंसिपल ने अपने 10 टीचर्स को बुला के डांटा, 10 के 10 एक समान प्रभावित होते हैं। एक इतना ज्यादा प्रभावित हो सकती है कि उससे सुसाइड कर ले वहां से निकल के, और एक कहे कि ये प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया। एक बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, एक इतना प्रभावित हो जाए उसको लगे कि जिंदगी कोई काम की नहीं है, वो उससे सुसाइड भी कर ले। और ये भी बात देखने में आती है कि 10 साल पहले हम जिन चीजों से जितना प्रभावित नहीं होते थे, आज हम जितना प्रभावित होते थे, आज हम उन चीजों से उतना प्रभावित नहीं होते। तो इससे ये भी समझ में आता है कि ये जो प्रभावित होने वाला मामला है, ये भी लगातार बदल रहा है। बचपन में मैं जिन चीजों से प्रभावित होता था, जवानी में जिन चीजों से प्रभावित होता था, 2 बच्चों का बाप बन के जिन चीजों से प्रभावित होता था, और अपने बच्चों की शादी और 60 साल के बाद मैं जिन चीजों से प्रभावित होता हूं, जिस तरह की चीजों से मैं प्रभावित होता था वो लगातार बदल रही हैं, उनके प्रभाव भी लगातार बदल रहे हैं। इसका मतलब है जब ये बदल ही रहा है तो इसको मैन्युअली भी बदला जा सकता है, उसको कंट्रोल्ड तरीके से भी बदला जा सकता है। यहां से जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात आती है। तो सार बात कितना कह रहे हैं? जिस तरह से मुझको गाड़ी चलानी आती है, चाहे भीड़ हो चाहे पहाड़ हो, मैं बढ़िया गाड़ी चलाता हूं, उसी तरह से मैं बढ़िया गाड़ी चलाता हूं। बाहर चाहे माहौल कैसा भी हो, मैं अपने भाव और विचार को बढ़िया तरह से नियंत्रित करता हूं। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, इसका नाम जिंदगी की गाड़ी चलाना है। मेरे भाव और विचार दूसरों के कारण प्रभावित हो जाते हैं और मैं नेगेटिवली सोचने लगता हूं, इसका मतलब गाड़ी चलाना नहीं आता है। बढ़िया। तो सार बात क्या बोला? तो यहां से ये निकल के आया कि बेसिकली मेरे खुश रहने का एक ही मतलब है कि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों।
और ये भी समझ में आया कि जब मैं भावपूर्ण होता हूं, जब मैं भावपूर्ण होता हूं और विचारों में समझण होता है, समाधान होता है, समझण। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर दोबारा नहीं, बार बार नहीं बोलूंगा। गुजराती में समाधान को समझौता बोलते हैं, हिंदी में समाधान को समझण के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो समझण का मतलब है प्रकृति के नियम की समझ। तो प्रकृति के नेचर के नियम की जो समझ है, जो मेरे को किसी भी समस्या में, है ना, मैं पार पा जाता हूं, मैं उससे घबराता नहीं हूं, उसका नाम समझण है। जब मैं भावपूर्ण होता हूं, मेरे विचारों में समझण होता है, अंतर विरोध नहीं होता है, इसी का नाम सुख है। सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है। धीरे से इसको और समझेंगे। जब मेरे भाव में अभाव होता है या मैं भाव शून्य होता हूं, अभाव है, भाव शून्य होता हूं, जब मेरे पास समझण की जगह समस्या होती है, इसी का नाम दुख है। तो कहानी पकड़ में आ गई कि जब ये कह रहे हैं जिंदगी के प्रति विश्वास, तो इसका इतना ही मतलब है कि अपने भाव और विचार के प्रति विश्वास, कि मेरे भाव और विचार में मेरे स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है। अभी सारी परेशानी कितनी है, जैसा कि मैंने सुबह कहा, भाई 4 लाख की सैलरी है और लगता है यार जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा ही है, और सरकारी नौकरी है, और बच्चे भी ठीक हैं, बीवी भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, और इस बात की खुशी दोनों पति पत्नी मना रहे हैं। इतने में दोस्त आ गया, मेरे साथ ही पढ़ा था, पढ़ने में मेरे से कमजोर था, वो आके बता के चला गया मैं तो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। अब सब कुछ बेकार हो गया। ये जो माइंडसेट है, इसका मतलब मेरे अपने में मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरों से कंपेयर करके जो मेरे को अपने छोटेपन का एहसास होता है, दूसरों से कंपेयर करके अपने आप में असफलता का एहसास होता है, ये एहसास लगातार बना रहता है, कोई ना कोई चीज से आते रहता है। इन चीजों को मैं कैसे हैंडल करूं, इसका मतलब मेरे भाव और विचार मेरे नियंत्रण में है कि दूसरों के नियंत्रण में है। तो कोई भी आके मेरे को दुखी करके चल देगा, तो मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहे कि दूसरों के हाथ में रहे। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं कि गुलाम रहना चाहता हूं। स्वतंत्रता की परिभाषा है दूसरों के, वातावरण के दबाव से स्वयं को मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की परिभाषा है वातावरण के दबाव से स्वयं को मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। मनमानी और स्वतंत्रता अलग अलग है। मनमानी क्या है? मनमानी से काम चलेगा कि बुद्धिमानी से काम चलेगा? मनमानी क्या है? मनमानी यही है कि मैं स्वयं से प्रभावित हो जाता हूं, शरीर से प्रभावित हो जाता हूं, इसका नाम मनमानी है। मैं दूसरों से प्रभावित हो जाता हूं, ये भी वही प्रॉब्लम है। तो मनमानी और दूसरों से प्रभावित हो गया, दोनों एक ही बात है। बुद्धिमानी वो जगह है, बुद्धि वो जगह है जहां हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो बेसिकली जब ये कह रहे हैं कि स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना, तो वातावरण कहां पे है? वातावरण मतलब आसपास। वातावरण आसपास नहीं है, वातावरण मेरी कंडीशनिंग है। यदि मैंने माना हुआ है कि इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है और पैसा ही सब कुछ है, तो मैं प्रभावित होता रहूंगा। तो मेरी मान्यताएं, मेरी भ्रमित मान्यताएं, मेरी गलत मान्यताएं ही मेरे को दूसरों से प्रभावित कराती हैं, करती हैं। इसका मतलब है अपनी ही भ्रम से मुक्त होना है, अपनी ही नासमझी से मुक्त होना है ना। आपको याद है ना, जब जो कुत्ते से डरता है ना, उसको गली में ढूंढ ढूंढ के कुत्ता दिखाई देता है, और जो कुत्ते से डरता नहीं है, उस गली से निकला, उसमें 2 कुत्ते थे, उसको दिखाई भी नहीं दिया। तो इसका मतलब है
यदि मेरे भीतर मान्यता है कि बड़ी कार वाला बड़ा आदमी होता है, तो मेरे को चुन चुन के बड़ी कारें दिखाई देती। यदि मेरी मान्यता है कि लाल बत्ती वाला बड़ा आदमी होता है, तो लाल बत्ती वाली गाड़ी रोड से नहीं जाती है, मेरी छाती से गुजर के जाती है। तो ये मान्यता है, जैसा मेरे को अंदर में मान रखा है वैसा मेरे को दिखाई देता है। यदि मैंने वैसा मान नहीं रखा है तो मेरे को दिखाई नहीं देता है। किसी गांव में कलेक्टर पहुंच गया बोलते हैं, वो गांव वालों को जाके बोलता मैं कलेक्टर हूं। बोले तो क्या हुआ? बोले कोई भी समस्या आएगी? बोले हमारे पास तो पटवारी है। अब गांव वाला कलेक्टर को जानता ही नहीं था, उसके लिए तो पटवारी सब कुछ है। उसकी सारी जमीन तो पटवारी के हाथ में है, तलाटी। तो कलेक्टर से बड़ा उस गांव के व्यक्ति के लिए तलाटी है। उसको क्या करना है, तुम कलेक्टर हो, मेरे क्या करना तुम्हारे कलेक्टर होने से? तो जो जिसको मानता नहीं है वो उससे प्रभावित भी नहीं होता है। जो जिसको मानता है तभी हम उससे प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब है मेरी मान्यताएं हैं जिनकी वजह से मैं प्रभावित होता हूं। तो वातावरण बाहर नहीं है, वातावरण मेरी मान्यताओं में है, मेरी कंडीशनिंग ही मेरा वातावरण है। तो इससे ये क्लैरिटी बनती है, स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना है, इसका मतलब स्वतंत्रता है। तो मेरे भाव और विचार में जितनी भी नेगेटिव मान्यताएं हैं उनसे मैं अपने आप को मुक्त कर लेता हूं, तो मैं वातावरण के दबाव से मुक्त हो जाता हूं। तो मैं दूसरे की चीजों से या दूसरे से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता हूं। तो यहां ये हमारी क्लैरिटी बनी। तो इसका मतलब ये हुआ, सार बात इतनी निकली कि मेरा भाव और विचार मेरे कंट्रोल में आ जाए। देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, इल्यूस्ट्रेशंस दूंगा जिससे कि आपको ये ध्यान में आ जाए कि अपने भाव और विचार को बदला जा सकता है और मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में आ सकता है। ऐसे कुछ मैं ग्लिम्स आपको देने की कोशिश करता हूं, कैसे मेरी मान्यताओं के अनुसार मेरी जिंदगी में स्वर्ग या नर्क पैदा होता है, जैसा मैंने मान रखा है। देखिए फिर से कह देता हूं, आदमी का भाव और विचार सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर है। आदमी का शरीर सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? हार्डवेयर। भाव और विचार सॉफ्टवेयर है, शरीर हमारा हार्डवेयर है। जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा हार्डवेयर काम करता है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सही अर्थों में सॉफ्टवेयर बदल जाएगा तो हार्डवेयर अपने आप से ठीक से काम करेगा। तो प्रॉब्लम हार्डवेयर की है कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है? तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है, हम काम हार्डवेयर पे कर रहे हैं। जितनी गरीबी मिटाने का प्रयास हुआ उतनी गरीबी बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि गरीबी मानसिक घटना ज्यादा है। यदि मानसिक गरीबी घट जाएगी तो देश में तमाम लोगों के लिए अवसर खुल जाएंगे। तो यहां से हमको यह समझ में आया कि भाव और विचार सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर कैसे बदलते हैं वो मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल में बदल के दिखाता हूं, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगले 6 दिन हम इसको कैसे लगातार बदलते रहेंगे। और इसी का नाम जिंदगी कर लो मुट्ठी में। बढ़िया बढ़िया सोच के ऐड बनाते हैं लोग, सुनने में तो एक बार को ध्यान चला ही जाता है। देखो ऐड बनाने वालों की कितनी मास्टरी है, केवल वो 15 सेकंड्स में आपका ध्यान खींच लेता है। वो कुछ ऐसा बोलता है, वो कुछ ऐसा दिखाता है कि एक बार को ऐड हमारे अंदर चिपक जाता है। चलिए तो देखिए, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा इस बात पे करते हैं कि जैसे हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाना है ठीक से, शोल्डर एकदम सीधा हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बीच बीच में शिविर में करते रहेंगे ताकि अपना शोल्डर ठीक रहे। कम से कम शोल्डर से क्या है, जिम्मेदारियां उठाते हैं। तो जिम्मेदारी उठाने की जगह को बीच बीच में मजबूत करते रहेंगे। तो आप सबने हाथ उठाया और अभी एक लाइन में बोलूंगा, आप सबका सॉफ्टवेयर गलत सिद्ध हो जाएगा। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना समस्या है।
हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना ही समस्या है? हम समस्याओं से दुखी नहीं होते, समाधान का ना होना दुख है। समस्या दुख का कारण नहीं है, समाधान का ना होना दुख का कारण है। दोनों में क्या फर्क पड़ता है बोल के बताओ? दोनों में क्या फर्क पड़ता है बोल के बताओ? समस्या दुख का कारण नहीं है, समाधान का ना होना दुख का कारण है। यदि मैं मानता हूं कि समस्या दुख का कारण है, तो मेरी जिंदगी में मेरे भाव और विचार कैसे रहते हैं? यदि मैं मानता हूं कि समाधान का ना होना दुख का कारण है, तो मेरे भाव और विचार में क्या अंतर आता है? हेलो, बोलिए। हेलो, माइक, बहुत बढ़िया। हेलो, कहाँ हो? हेलो। हेलो। जी सर, इन दोनों में फर्क ये है कि अपन जैसे बात करते हैं कि समस्या से परेशान होते हैं, तो जैसे ही समस्या आएगी तो हम दुखी हो जाएंगे। हरियाणा से आए हो? बीकानेर से। अच्छा, मजा आ जाता है सुन के। हरियाणा में शील लेने का अलग मजा। तो हम जैसे ही ये समझते हैं कि समस्या से दुखी होते हैं, तो समस्या आते ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ये पता हो कि समस्या से दुखी नहीं होते हैं, तो हम हल की तलाश में निकल जाते हैं। कितना सिंपल। बदल गया भाव और विचार? बोलिए। बहुत बढ़िया। हेलो, वो समस्या थी, ये समाधान है। तो जब समस्या आती है और हमको समस्या को अगर हम चैलेंजेस की तरह ले लें और हमको पता है कि ये समस्या को दूर करने में या समस्या दूर करने में हम कर सकते हैं या हमारा कोई मदद करेगा, तो वो समस्या समस्या नहीं रहेगी। जब समस्या होती है और उसका हमको सॉल्यूशन ही नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, दुख तो तभी आता है। तो समस्या दुख नहीं देता है, समाधान का ना होना मेरे को लगता है दुख वो देता है। और कोई बोलना चाहेंगे? सर, परिचय। मैं धर्मेश वखारिया, मुंबई से। माइक कोई खुला है? हाँ जी जी, बोलिए, आप बोलिए। सर, पता है कि ये ताले की चाबी नहीं है अपने पास, और पता होता है कि ये ताले की चाबी है, और नहीं भी है तो कहीं से बन जाएगी, किसी से मिल जाएगी। हाँ। तो जैसे ही मैं ये स्वीकारता हूं, माइक बंद कर दीजिए कुछ माइजात। यदि जैसे ही मैं ये मानता हूं कि समस्या से मैं दुखी होता हूं, तो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस उसी समय नेगेटिविटी में चल देता है। मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ही भाग्य ठीक नहीं है, और ये आदमी ऐसा ही क्यों है, ये मेरी जिंदगी में ही क्यों आया, और मर ही जाना ठीक है, यही मर जाता तो अच्छा होता। तो जब भी मैं ये मानता हूं कि प्रॉब्लम, समस्या दुख का कारण है, तो मैं डेड एंड पे आ जाता हूं, जहां आगे रास्ता नहीं है, और उसकी प्रतिक्रिया में पूरी सोच प्रतिक्रिया में चलती है। जैसे मैं ये स्वीकारता हूं कि लॉक है, चाबी खो गई है, कोई बात नहीं, कहीं से बनेगी, कुछ होएगा। जैसे मैं पॉजिटिव रहता हूं, सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता हूं, तो मैं सॉल्यूशन के लिए ऑप्शंस की तलाश करता हूं और मैं वहां से निकल आता हूं। तो इससे एक बात हमारे ध्यान में आ गई कि बेसिकली जब स्वयं के प्रति विश्वास में कमी होती है, तो हम हमेशा नेगेटिविटी में जाते हैं। यदि हम स्वयं पे काम कर रहे हैं, भाव और विचार की दुनिया पे थोड़ा सा हमारा अधिकार आ गया है, और हमको ये पता चल गया है कि ये भाव और विचार की दुनिया को कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा सा स्वयं में विश्वास की यात्रा मिली है, तो तुरंत हम सॉल्यूशन तलाशने की ओर जाते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की ओर जाते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल देता हूं
जैसे आपकी गाड़ी का माइलोमीटर ये बताता है कि आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो ये समस्या है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि माइलोमीटर को फुल पे सेट करके स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दें। आज के बाद कभी पेट्रोल खत्म नहीं होगा। ये सही है क्या? कभी भी जंगल में खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि माइलोमीटर का ये बताना कि पेट्रोल रिजर्व में आ गया है, ये मेरे सुखी होने के अर्थ में सूचना है कि ये मेरे दुखी होने के अर्थ में सूचना है? ये मेरे सुखी होने के अर्थ में सूचना है, ताकि मैं दुखी ना हूं, कहीं भी रोड पे खड़ा ना हो जाऊं। इसका मतलब है जब भी समस्या आई, समस्या मेरी जिंदगी का माइलोमीटर है कि तुम्हारा समाधान का टैंक खाली हो गया है। तो समस्या मेरी जिंदगी का माइलोमीटर है कि तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारा समाधान का टैंक, समझण का टैंक खाली हो गया है, तो किसी पेट्रोल पंप पे जाओ। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी जिंदगी में समस्याओं का आना का इतना ही मतलब है कि जो मुझको ये परिस्थिति बताती है कि कहां तक मैं कितना इवॉल्व हुआ हूं और कहां मेरा इवॉल्व होना अभी शेष है, मेरा विकसित होना अभी शेष है। प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, तो मुझको अपनी स्थिति का पता चलेगा, अपने अधूरेपन का पता चलेगा। अपने अधूरेपन का पता चलेगा तो पूरा होने के लिए प्रयास करूंगा, पूरा होने का प्रयास करूंगा तो पूरा हो जाऊंगा। तो समस्याएं मेरे विकसित होने की पृष्ठभूमि है, समस्याएं मेरे विकसित होने का, समस्या के पायदान पे कदम रख के मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हूं। तो अब बताइए, समस्या आए कि नहीं आए? समस्या आए कि नहीं आए? आए। समस्या नहीं आएंगी तो मेरे को पता कैसे चलेगा? आईने में देख के आप अपने बाल ठीक करते हो, शक्ल ठीक करते हो, कपड़े ठीक करते हो, तो समस्याएं मेरी जिंदगी का आईना है जिसमें देख के मैं अपनी जिंदगी ठीक करता हूं। तो यदि मेरा ये एटीट्यूड होगा, यदि मेरा ये जिंदगी को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव नोट होगा, तो फिर समस्याएं मेरे को समस्या जैसी नहीं लगेगी। हर समस्या के आने पे जो आपने कहा वो मेरे को चैलेंज जैसा लगेगा और उसको कैसे हैंडल किया जाए मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। तो इस एक एग्जाम्पल से हमारा ध्यान चला गया, यदि मेरी कंडीशनिंग है, यदि मेरी मान्यताएं हैं कि समस्या दुख का कारण है, तो मेरे भाव और विचार की स्थिति कैसी होगी। और यदि मेरे को यह स्वीकार हो गया है समस्याएं दुख का कारण नहीं है, समस्याएं मेरे विकसित होने के पायदान हैं, तो समस्याओं को लेकर मेरा दृष्टिकोण कैसा होगा। कितने लोगों तक बात पहुंची? ठीक हो गया? तो क्या किया? मात्र सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा करेक्शन किया। और क्या करेक्शन किया? जो नेचर में है, जो एग्जिस्टेंस में है, वो ऐसा ही है। मैंने कुछ कर दिया या आदरणीय नागराज जी ने कुछ कह दिया, तो आदरणीय नागराज जी ने इतना ही किया कि अस्तित्व जैसा है, नेचर जैसा है, उसका नियम जैसा है, प्रक्रिया जैसी है, उसको वैसा बता दिया। तो मेरे विचार को अस्तित्व के नियम के अनुरूप होना है कि अस्तित्व के नियम को मेरे विचार के अनुरूप होना है? मेरी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के नियम के अनुरूप होना है, मेरे भाव और विचार को अस्तित्व के नियम के अनुरूप होना है ना, नेचर के अनुरूप होना है। नेचर को मेरे अनुसार होना है कि मेरे को नेचर के अनुसार होना है? तो मेरे को नेचर के अनुसार होना है। तो मेरे सॉफ्टवेयर में जगह जगह मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो नेचर के नियम के अनुरूप नहीं है। इसलिए कहा कि नियम का विरोध ही दुख है, नियम के अनुरूप हो जाना ही सुख है। तो सुख दुख का और कोई मतलब नहीं है, सुख दुख का और कोई मतलब नहीं है। दुख मात्र इस बात की सूचना है कि मैं नियम का विरोध कर रहा हूं। किसी जगह में मैंने नियम को नहीं पहचाना। बढ़िया। अब बताओ, हम घटनाओं से सुखी दुखी होते हैं कि नहीं? घटनाओं से सुखी दुखी होते हैं कि नहीं? हाथ उठाओ। हम घटनाओं से सुखी दुखी होते हैं, है ना? एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। जब हम छोटी क्लास में थे
प्राइमरी मिडिल क्लास में, तो टीचर क्वेश्चन पूछा करती थी, और जब क्वेश्चन नहीं आता था तो हम क्या करते थे, दूसरे की पीठ के पीछे सर घुसा दिया करते थे ताकि टीचर देख मत ले। कितने लोगों ने किया ऐसा? हाथ उठाओ। हम सब उसी स्कूल से आए। और जिसको आंसर आता था वो क्या करता था? तो इसका मतलब टीचर का क्वेश्चन पूछना प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। उससे पूछ कर देखो जिसको क्वेश्चन नहीं आता है। वो तो घड़ी देख रहा है, बस 2 मिनट 5 मिनट और गुजर जाए तो बेल बज जाए तो जान बच जाएगी। इसका मतलब टीचर का प्रॉब्लम पूछना प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी कहां है? उससे पूछ के देखो जिसको क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मतलब वो ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी। टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है। टीचर का जन्म भी एक घटना है, टीचर की मृत्यु भी एक घटना है, टीचर की जवानी भी एक घटना है, उसकी शादी होना भी एक घटना है, आज उसका क्लास में आना भी घटना है, और आज उसका क्लास में क्वेश्चन पूछना भी घटना है। तो इससे यह भी समझ में आया कि इस पूरी सृष्टि को देखें तो अनंत घटनाओं की अनवरत श्रृंखला के रूप में यह सृष्टि है। ये पूरी सृष्टि कैसी है? अनंत घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। घटनाएं लगातार घट रही हैं। हम सो जाएं, जग जाएं, धरती लगातार घूम रही है, सूरज लगातार अपनी गति के साथ है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, समुद्र में अपने घटनाक्रम चल रहे हैं, आकाश में अपने घटनाक्रम चल रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, कहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहीं शमशान घाट पहुंच रहे हैं। तो पूरी सृष्टि को देखें तो अनवरत घटनाओं की श्रृंखला है। घटनाओं को रोकना मेरे हाथ में है? नहीं है। घटनाओं को रोकना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन घटना को कैसे मैं लूंगा, यह मेरी स्टेट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है। अब टीचर ने क्वेश्चन पूछा और मेरे को आंसर आता है तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। टीचर ने क्वेश्चन पूछा और मेरे को आंसर नहीं आता है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। इसका मतलब प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कौन है? मैं हूं। टीचर तो एक घटना है। सास क्या है? सास के लिए पूछता हूं तो ये लोग दुर्घटना बोलते हैं। और बहू क्या है? तो 30 साल पहले की घटना यह है कि जब बहू आती थी तो डरते डरते आती थी कि सास कैसी मिलेगी। आजकल बहू आ रही होती है तो सास डर रही होती है कि बहू कैसी आएगी। ये क्या है? तो तख्ता पलटने में मात्र 30 साल लगा, 20 साल लगा। तो इससे यह समझ में आया कि ना तो सास भी एक घटना है, बहू भी एक घटना है, टीचर भी एक घटना है, मेरा होना भी एक घटना है, ये मौसम भी एक घटना है, जन्म भी एक घटना है, मृत्यु भी एक घटना है। इन सारी घटनाओं को मैं कैसे लेता हूं, इसका नाम सुख और दुख है। एक और सोचने की बात है, सारी घटनाएं रैंडम घट रही हैं, बिना किसी नियम से घट रही है कि नियम से घट रही है? सारी घटनाएं किसी नियम से घट रही हैं। वो नियम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का है कि अस्तित्व का है? अस्तित्व का है। सारा नियम अस्तित्व में है, नेचर में है। सारी घटनाएं किसी नियम से घटती हैं, चाहे वो आदमी की जिंदगी में घटे, चाहे मरने की घटे, क्या जीने की घटे, चाहे बच्चा हो कि पार्टी हो, तो सारी घटनाएं किसी नियम से घट रही हैं। यदि मेरे को वो नियम पकड़ में आ जाए, नियम स्वीकार हो जाए, तो घटना स्वीकार हो जाती। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैंने शरीर के नियम को नहीं स्वीकारा है। मैंने शरीर के नियम को नहीं स्वीकारा है, नहीं जाना है। इसका मतलब जब बाल सफेद होते हैं तो मुझको स्वीकार नहीं होता है। जब चेहरे पे झुर्रियां आती हैं तो मुझको स्वीकार नहीं होता है।
मैं तो 18 साल का ही दिखना चाहता हूं। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि मेरे को अपने अस्तित्व का पता नहीं है, मेरे को मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं है। मैंने शरीर को अपनी आइडेंटिटी माना है और मैं तो हमेशा जवान रहना चाहता हूं। यदि शरीर को, अपने आप को शरीर माना है तो मैं शरीर को जवान दिखना चाहता हूं। जब मैं अपने आप को पहचान लेता हूं तो पता चलता है कि मैं भाव और विचार के स्वरूप में हूं और हमेशा खुश रहना मेरी जवानी है। 80 साल का व्यक्ति जवान हो सकता है, 20 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है। जो उदास है वो बूढ़ा है, जो समस्याओं के साथ है, जो निराशा के साथ है वो बूढ़ा है, जो आशा के साथ है, जो सॉल्यूशन के साथ है, जो समझण के साथ है, जो खुशी के साथ है, वो जवान है। ऐसा मेरे को पकड़ में आ जाता है तो शरीर की जवानी फिर मेरे को तंग नहीं करती है। जब तक बाप की जवानी ढलती है तब तक वो जवानी कहीं जाती नहीं है, बेटे में शिफ्ट हो जाती है। जवानी हमेशा है। और जब मैं अपनी एक्चुअल जवानी को पहचान लेता हूं तो मेरा समझण के साथ में होना, मेरा खुश होना, इसका नाम जवानी है। तो बेसिकली जवानी से भी मैं खुश होना ही चाहता हूं। तो बेसिकली जवानी से भी मैं खुश होना ही चाहता हूं। और यदि मेरे को खुशी का राज जवानी से इंडिपेंडेंट पता चल गया तो जवानी पे मेरी निर्भरता नहीं रही, शरीर की जवानी पे मेरी निर्भरता नहीं रहती है। इसका मतलब घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण है कि घटनाओं के प्रति मेरी समझ और उनकी स्वीकार्यता मेरे सुख दुख का कारण है? तो घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरे सुख दुख का कारण है। यदि मैं समझण के साथ हूं, सॉल्यूशन के साथ हूं, इसका नाम सुख है। यदि मेरे पास समझण नहीं है, इसका नाम दुख है। तो एक बात और पता चली कि हम घटनाओं से दुखी नहीं होते, हम समस्या से भी दुखी नहीं होते, हम घटनाओं से भी दुखी नहीं होते। दो बातें पता चली। इससे हमारे भाव और विचार में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? कितने लोगों के ध्यान में आ रहा है? गुड। तीसरी बात, हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं? सीखते हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। गलतियों से सीखते हैं कि नहीं? सीखते हैं, ऐसा बोलते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, मेरे पैदा होने से लेके जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है वो सब गलतियों से सीखा है। तो मैंने बोलना सीखा, चलना सीखा, खाना सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, कमाना सीखा, कोई टेक्निकल ज्ञान सीखा। तो जो कुछ भी मैंने सीखा वो मैंने गलतियों से सीखा कि सही से सीखा? कोई दो पैर से चलता था मेरे घर में, वो मुझको चलाना सिखाता था, मैं सीखना चाहता था, इसलिए मैं सीख पाया। कोई बोलता था, वो मुझको सिखाना चाहता था, इसलिए सीख पाया। किसी को मैथमेटिक्स आता था, किसी को इंग्लिश आती थी, किसी को साइंस आती थी। मैंने गलती करके साइंस सीखी या किसी को साइंस आती थी इसलिए मैंने साइंस सीखी? मैंने गलती से भाषा बोलना सीख लिया कि किसी ने सिखाया इसलिए मैंने सीख लिया? इसका मतलब यह हुआ, हम सही से सीखते हैं कि गलतियों से सीखते हैं? हम सही से सीखते हैं, फिर ये गलतियां बीच में कहां से आ गई? इसका मतलब यह हुआ, जब एक बच्चा पहली बार एक शब्द बोलता है तो पहली बार में ही बोल देता है कि उसके पहले उसने 1000 कोशिशें की हैं। हमने सही तक पहुंचने की कोशिशों को गलती नाम दिया है। हर बार मैं एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो पहले मैं तय करता हूं कि 4 बार गलत आंसर निकालूंगा, फिर मैं सही आंसर निकालूंगा। मैं तो पहली बार से ही सही आंसर तक पहुंचना चाहता हूं, सही आंसर तक नहीं पहुंच पाता तो मेरे को ऑब्जर्वेशन आता है कि ऐसे नहीं पहुंचूंगा, तो फिर मैं सही के लिए कोशिश करता हूं। मैंने सुबह उठ के कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि आज मैं सुबह उठ के कुछ गलती करना चाहता हूं। ऐसा कभी किया? आज संडे है, मेरा गलती करने का मन है। मैंने कभी सोच के गलती नहीं की। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को पूछते हो गलती तुमसे हुई है, बोले मैं तो था ही नहीं। बोले नहीं नहीं तुम तो थे, और तो उसके कारण हुई थी। उसके बाद भी गला पकड़ लिया तो लास्ट में बोलेगा जानबूझ के थोड़ी ना की है।
इसका मतलब ये सच्चाई है, मैंने निर्णय पूर्वक कभी गलती नहीं की है। निर्णय पूर्वक मानव कभी गलती नहीं करता। मानव तो सुखी होना चाहता है, वो तो अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है, जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। चोर आपके घर में आता है, आपकी नींद का ख्याल रखता है कि नहीं? वो आपको तंग करना नहीं चाहता है। थोड़ा सामान आपने ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ना? इसका मतलब जो हम चोरी कहते हैं, वो तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, वो तो सुखी होना चाहता है, वो तो सफल होना चाहता है। एक भी एग्जाम्पल ढूंढ के बता दो जिसमें आदमी नोइंगली गलती करने के लिए जाता है और नोइंगली गलती करता है। एक भी एग्जाम्पल ढूंढ के बता दो। कोई किसी का अपमान भी करता है तो उसको कोई योजनाबद्ध तरीके से किसी का अपमान भी करता है तो वो उसका अपमान करना नहीं चाहता है, उसके अपमान करने से जो उसका पहले अपमान हो रखा था उसकी भरपाई करना चाहता है। वो दूसरे का अपमान करना नहीं चाहता है, वो तो अपने अपमान को या अपने भीतर जो दुख है उसको कम करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता है, उसको तो लगता है मैं पैसा पाके सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो पैसा लेता है। हम कहते हैं कि वो रिश्वत लेता है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर उतना ही है। तो आप एक एग्जांपल निकाल के बताओ जिसमें आपको लगता है कि सामने वाले ने नोइंगली गलती किया है। माइक। कहां से आए हो? तुम किसी बड़े शहर से आए हो ऐसा लगता है। यस सर, मेरा नाम वैश्विक है। मैं राजकोट से आया हूँ। अच्छा, राजकोट तो इतना बड़ा नहीं हुआ, पर काफी विकसित हो रहा है पहले की तरह। मेरी पढ़ाई दूसरे शहरों में हुई। कहां से हुई? बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। वही सब प्रभाव। जब आप अरेंज मैरिज के लिए जाते हैं, आपको पता है कि 25 साल के ऊपर हो गया, अब तो मिलेगी नहीं लड़की। पता ही है कि इसके ही साथ करनी है, गलती कर ही रहे, फिर भी करता है ना इंसान। उधर उसको पता है कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा, फिर भी करता है। या तो इतना सीरियस होके मत बोलो, थोड़ा बीच में हंस भी दो ताकि मेरे को लगे कि लाइटर नोट पे बोल रहे। तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। मतलब दूसरों से इतना सीख लिया। लेकिन घर में तो शादीशुदा है ना पेरेंट्स, उनको देख के पता चलता है ना सर। तो फिर भी क्यों करते? ह्यूमन नेचर टू रिप्रोड्यूस, आगे वंश बढ़ाना, अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ाने की जिम्मेदारी तो हो, उसमें भी कोई सुख मिलता है। तो प्रजनन क्रिया अपने आप में सुखदायी है, साथ में एक दूसरे का सपोर्ट करना अपने आप में सुखदायी है, अपने बच्चों का पालन पोषण करके अपना घर बसाना वो अपने आप में एक सुखदायी काम है। इतने सुख के साथ में वो मान लेता है कि थोड़ा बहुत दुख तो चलेगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना। कहां दिया? दुख आपने ही बोला कि दुख। ना, यदि उसको ये पता चले कि इसमें कोई सुख नहीं है, केवल और केवल दुख है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो ये मान के ही चोर चोरी करने जाता है तो यही सोच के जाता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। यदि उसको पता हो कि 100% जाल बिछा हुआ है और तुम पकड़े ही जाओगे, उस दिन तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली आदमी के भीतर सुखी होने की आशा, सफल होने की आशा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा में ही वो कुछ करता है जिसको जमाना गलती के रूप में पहचानता है। वो तो गलती सोच के आज में, आप कोई भी गलती हम खुद भी करते हैं, बहुत सारा काम हम ऐसा करते हैं जो हमको लगता है करने के बाद, लेकिन आप देख लीजिए आपके पास उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है। बिना जस्टिफिकेशन के आप खुद भी कोई निर्णय पूर्वक जिनको हम गलती मानते हैं, किसी को तंग करना, किसी का अपमान करना, कुछ और करना, हम मानते हैं कि यही जीने का तय तरीका है, उसको सबक सिखाने का यही तरीका है। कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास होता है तभी हम कर पाते। तो आपने आंसर नहीं दिया। एक भी पूरी सभा एक भी आंसर, एक भी एग्जाम्पल देके बता दे
कि कैसे मैंने नोइंगली गलती किया। एक भी एग्जांपल देके बता दो। माइक, इनको माइक दो। સર હું દેવલ અમદાવાદથી છું અને તમે જેમ हिंदी बोल सकते? हाँ हिंदी भी बोल सकती हूँ बिल्कुल। बोलिए बोलिए। मेरा नाम देवल है और मैं अहमदाबाद से हूँ। और जैसे उन्होंने बताया, आपने बोला ना कि मतलब कोई भी जानबूझ के नहीं करता, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया चोर वाला, तो कई बार जिम्मेदारियां या मजबूरियां भी हमको गलती से गलती करवाती है। जैसे एक आपने की हो उसको बोल के बताओ। मैंने नहीं की, लेकिन आपने जैसे बताया ना कि चोर को अगर पता होगा कि जाल बिछाया हुआ है, गलती बताओ, ऐसी कहानी नहीं चाहिए। नहीं मैंने ऐसी कोई गलती मैं नहीं बता सकती, पर हाँ मजबूरियां करवाती है सर। कैंसल कैंसल मजबूरियां करवाती है। कैंसल। कोई भी बोल के बताओ, कहानी नहीं। हाँ सर जी। अगर शादी की बात करें तो अगर हमें नहीं करनी होती ना तो भी हमको करवाई जाती है कि नहीं भाई, लड़की हो शादी करके जाना है, या लड़का हो तो हमको। ऐसा नहीं है। मैं तमाम ऐसी लड़कियों से मिलता हूं जिन्होंने ना कह दिया मतलब ना है, उसकी ना के ऊपर किसी की नहीं चल सकती। आपको खुद को अपनी ना पे भरोसा नहीं होता है, आपको खुद को ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं करने का भी कारण पता नहीं है। शादी तो एक ऐसी पहेली है, जो कर रहे हैं उनको क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं, जो नहीं कर रहे हैं उनको क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी पता नहीं। मैं सीरियसली कह रहा हूं। तो बिल्कुल, तो इसका मतलब है इसलिए ये सब इतना प्रॉब्लम में आ गया। पहले लोग बिना सोचे समझे कर रहे थे। जब से लॉजिक आया है, जब से आदमी में एनालिसिस आया है, सोचने का तरीका, उसको सोचना आया है, अब वो सोचने लगा है क्यों शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, नहीं मैं तो आईवीएफ से ले आऊंगा, नहीं मैं तो गोद ले लूंगा। तो ये जितने सारे तरीके से आज तक हम शादी के बारे सोच रहे थे, वो सारे तरीके खत्म हो गए हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है किसी एक आदमी के साथ लाइफ टाइम कमिट करना कि हम साथ मिलके चलेंगे। जब कोई पर्पस है तो लाइफ टाइम कमिट करने की जो भी परेशानियां आएंगी उसको मिलजुल के समझेंगे। जब कोई पर्पस ही नहीं बचा है तो क्यों एक दूसरे को झेला जाए। इसी का नाम शादी है। तो वो क्लैरिटी हमारी नहीं है, तो अच्छी बात है। पुराने सारे आधार गिर गए हैं और नए आधार सामने आए नहीं है। इस बीच में हम परेशान जरूर होंगे, क्योंकि बहुत लोगों के डिवोर्स होंगे, बहुत सारे परिवार टूटेंगे, आप बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ये पीड़ा हमको सोचने के लिए मजबूर करेगी रास्ता कहां है, और ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत, रास्ता हम खोज लेंगे, रास्ता हम पा लेंगे। अभी मेरे को ब्रेक करने के लिए इशारा है। इतना जल्दी कैसे हो गया ब्रेक? चलिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू। हाँ जी, इन बहन का एक क्वेश्चन ले लीजिए, तो एक सेकंड के लिए रुक जाइए, इनको माइक दो। माइक, परिचय, माइक, परिचय, परिचय। हाँ हेलो, हाँ सर मेरा नाम खुशी शुक्ला है और मैं नवरचना में से फर्स्ट ईयर किया है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और अभी आत्मीय में सेकेंड ईयर से करने वाली हूँ। सो मैं आपको जवाब देना चाहती थी, आपने जो बोला गलती वाला, दैट सुसाइड इज अ गलती, जिससे पता है कि दुख होने वाला है तो भी लोग क्यों करते हैं? तुमने किया कभी? नहीं, इसीलिए तो जिंदा हूँ। ऐसा नहीं है, करने वाले ही बच जाते। तो इसका मतलब यह हुआ कि है कोई सभा में जिसने किया हो, मतलब किया हो, मतलब अटेम्प्ट किया हो, है कोई सभा में? देखो, जो बात हो यार आधिकारिक व्यक्ति से बात हो, कल्पना से क्या बात करना, तो कोई नहीं है, तो फिर कल्पना से बात करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी सुसाइड कब करता है? वो दुखी होने के लिए करता है कि दुख से बचने के लिए करता है? वो दुख से बचने के लिए ही करता है, इसलिए वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता, उसके पास वही रास्ता। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।